Our today's class is for 12th class. As you know, our subject is geology. Today we will try to understand the earthquake cause, that is anthropogenic cause. We have already discussed two causes, tectonic cause and volcanic cause. And now in this class we will try to understand anthropogenic cause or anthropogenic type of earthquake. What is anthropogenic type of earthquake? As you know, various human activities have either increased or caused earthquakes. There are so many ways, but the three main ways people have caused earthquakes. Number one, simple, by loading the earth's crust by water reserve. As you know, due to the increase in population, people loading the earth's surface for the requirement of water, either for drinking or irrigation or other purpose or for powerhouses. People loading the earth's crust by water reservoirs, as you know. Number one. Number two, by disposing of liquid waste into deep wells. Same is the case as due to increased population or due to the new techniques and drainage system, people are now disposing this liquid waste into the deep wells and deep ponds. So this is the next cause of earthquake. No doubt, minor earthquakes happen due to these uh, ways. The third one is setting off underground nuclear explosions. As you know, every country try to defend their own countries by storing nuclear weapons under the ground, and due to some negligences sometimes explosions happen due to these underground nuclear weapons, with the result earthquakes happen. So this is the anthropogeny, that means humans involvement is in this type of earthquake. So as you know, the scientists have found evidence that the most intense hurricanes are already occurring more often as a result of human caused global warming. As you know, due to global warming, intense hurricanes are occurring. So similarly, as you know, reservoirs induce seismicity. This is a transitory phenomenon which refers to the triggering of earthquake due to impounding of an artificial reservoir. No doubt it remains for a short period. It depends upon the bedrocks or the rocks which are on the floor of this reservoir. If they are permeable, then this reservoir induced seismicity sometimes triggers earthquakes due to these artificial reservoirs, due to the load or this artificial reservoir water percolates into the cracks or spaces of these permeable rocks or other rocks. Similarly, dams cause earthquakes is related to the extra water pressure created in the micro cracks or fissures in the groundwater and near a reservoir. So this is one of the cause when the mountains act as a walls, but due to cracks and fissures in these mountains, water percolates in these, penetrates into the cracks, with the result sliding of these walls, mountain walls or other structures, with the result earthquakes occur. So if we try to understand in a simple way, चूंकि आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ है कि जो टर्म एंथ्रोपोजेनिक
ये रिलेटेड है लाइफ, मीन्स ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। आप पहले ही जानते हैं बहुत सारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, चाहे वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है या उनकी वजह से जो अर्थ को एक एक्टिविटी काज हो जाती है, उस चीज़ से आप पहले ही वाकिफ है। जैसे कहीं माइनिंग का काम करते हैं ह्यूमंस, फिर एकदम पूरा पहाड़ गिर जाता है, उसकी वजह से छोटे मोटे जो जलजले आते हैं। सो दिस इज़ द वन ऑफ द कॉज। इसी तरह से 3 मेन चीज़ें जिसमें हम पहला जो उठाते हैं कि जो लोडिंग द अर्थ इज क्रस्ट बाय वाटर रिजर्वेयर्स, हम ज़मीन के क्रस्ट पॉट को कहीं पे बहुत बड़ा रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर बनाता है, और उस वाटर रिजर्व के जो साइड्स के वॉल, या तो हम माउंटेन एरिया में किसी वैली में वो बनाते हैं रिजर्वायर ताकि हमें सेफ रहे। लेकिन उसकी वजह से कभी कभार जब लोड ज़्यादा हो जाता है, उसके साइड्स जो है कभी उनका एरोजन होता है पानी की वजह से, पानी के दबाव की वजह से, विद द रिजल्ट अर्थक्वेक्स ऑकर। इसी तरह से बाय डिस्पोजिंग ऑफ लिक्विड वेस्ट इनटू डीप वेल्स, जैसे कभी कभी हम बहुत ही बड़ा पॉन्ड बनाते हैं, डीप वेल बनाते हैं, किस लिए? लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, या इस लिक्विड इस वेस्ट को जब हम डिस्पोज करने के लिए बहुत ही बड़ा पॉन्ड या वेल बनाते हैं, कभी कभार क्या हो जाता है, इर्द गिर्द का जो एरिया होता है वो इसमें सिंक हो जाता है। अगर ये माउंटेन एरिया हो या प्लेन एरिया हो, बहुत ही बड़ा एरिया, उसकी स्लाइडिंग हो जाती है, तो विद द रिजल्ट इसकी वजह से भी अर्थक्वेक होकर हो जाते हैं। इट कैन बी ए लोकलाइज्ड, ये कहीं उस एरिया के लिए भी, मतलब कभी कभार उसी एरिया में फील हो जाते हैं, छोटे मोटे माइनर अर्थक्वेक्स होते हैं उस एरिया में। ये सारे जो है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो जाते हैं। इसी तरह से सेटिंग ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तीसरा जो वजह है इसका, ह्यूमन हर एक मुल्क अपनी मुल्क की दिफा के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तैयार करते हैं, और उन न्यूक्लियर वेपन्स को जैसे यूरेनियम, थ्योरियम, इन मिनरल से फिर क्या करते हैं, जब इन वेपन्स को चूंकि अंडरग्राउंड स्टोर करना पड़ता है, अंडर द ग्राउंड, जब ये अंडर द ग्राउंड स्टोर करते हैं फॉर द सेफ्टी, लेकिन कभी कभार ड्यू टू द नेग्लिजेंस या ओवर डेट हो जाता है इसका, with the result explosions happen due to this nuclear weapon, इसकी वजह से बहुत बड़े explosions हो जाते हैं, और with the result earthquakes over, those earthquakes are anthropogenic type of earthquakes। इसी तरह से साइंटिस्ट्स ने ये एविडेंस मालूम किया है कि ज़्यादातर जो इंटेंस खतरनाक हरिकेन्स जो ऑलरेडी ओकर हो गए हैं या हो जाते हैं या होने वाले हैं, मोर ऑफन जो होते हैं टर्नेडो जैसे आपने सुना होगा, किस वजह से? वो सारा का सारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। यहाँ ये मतलब है ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से अर्थक्वेक्स हैपन हो जाते हैं इन तरीकों से। इसी तरह यह भी एक तरीका जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो ह्यूमन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में रेस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से इंटेंस हरिकेन्स ओकर हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो एंथ्रोपोजेनिक टाइप ऑफ अर्थक्वेक्स, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, आपने पहले ही इस बारे में सुना होगा। ये रेफर करता है ट्रिगरिंग ऑफ अर्थक्वेक्स, किस वजह से ये किस अर्थक्वेक्स इसकी वजह से कैसे हो जाते हैं, जब हम इम्पाउंड करते हैं, आर्टिफिशियल रिजर्वायर जब बनाते हैं बहुत ही बड़ा। लेकिन ये डिपेंड करता है वहाँ के जो ये इट कैन बी फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये ट्रांजिटरी फिनोमेना होता है बेसिकली। ये शॉर्ट टाइम में भी या कुछ देर लगती है इसको, जब ये वॉल्स इसके एकदम गिर जाते हैं, इस या जो रिजर्वायर हमने बनाया है, ये डिपेंड कर फ्लोर पे किस तरह के रॉक्स है, वेदर इट में भी परमेबल और नॉन परमेबल, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसकी वजह से जो छोटे मोटे ट्रिमर्स या माइनर अर्थक्वेक्स आते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इन्हीं पे लगाते हैं, इस आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स पे। ये सभी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो जाती है। डैम्स कॉज अर्थक्वेक्स, डैम्स की वजह से जो अर्थक्वेक्स हो जाते हैं,
ये रिलेट किस चीज से करता है? जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेशर क्रिएट हो जाता है जब एक डैम बन जाता है, उसमें जो ऊपर से ज्यादा पानी आ जाता है, लेकिन छोटे छोटे क्रैक्स के अंदर जब ये पानी चला जाता है, या फिशर्स बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं, उनके अंदर स्पेसेस के अंदर जब पानी चला जाता है, तो जो वॉल्स है, कभी कभार बड़े बड़े वॉल्स, द वॉल्स कैन बी द माउंटेन्स। जब हम कभी कभार इस एक वैली में अपना डैम बनाते हैं, एक ही साइड में रिवर निकलता है, लेकिन पूरा जो 3-4 साइड में, या सर्कुलर, इट कैन बी सर्कुलर, इट कैन बी रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ, तो उन बाकी वाल्स जो है वो माउंटेन एरिया हम लेते हैं। उस माउंटेन एरिया में जब रॉक्स परमेबल या पोरस होंगे, उन क्रैक्स और स्पेसेस में, फिशर्स में पानी जब दाखिल हो जाता है, तो वहाँ भी स्लाइडिंग के चांसेस हो जाते हैं। विद द रिजल्ट जब बड़ा एरिया एकदम नीचे गिरता है, स्लाइड हो जाता है, उसकी वजह से भी जलजले आ जाते हैं। नतीजा ये हो जाता है उसमें हर एक चीज़ में, चाहे वो वाटर रिजर्वेयर्स हो क्रस्ट पार्ट में, या डिस्पोजिंग ऑफ लिक्विड वेस्ट हो डीप वेल्स में, या सेटिंग ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन हो, इन सभी चीज़ों से जो अर्थक्वेक्स ओकर हो जाते हैं, उनको हम एंथ्रोपोजेनिक earthquakes. So this was the third cause. Tectonic was the first, volcanic was the second, and anthropogenic is the third cause of occurring earthquakes. So this was all about regarding the causes of an earthquake.